I think you've already revised about lens, theory of lenses, questions based on theory of lenses. And in the last session, we discussed about silvering of lens, cutting of lens, combination of lenses. So in this session, I'm going to discuss few MCQs based on the same. Okay, it's a very simple session where you have to just substitute the formula and you'll be able to solve. Okay, in the last session we also discussed about displacement method, which is, I told you, it's very important. And if you have not revised those formulae, there's no point in going through the question. So first of all, I would advise you to pause straight away and revise all the formulas that we had discussed in the last session. Is that okay? Now let's start with questions. Now if you see in your notes, level 1, question number 17. See, in that question number 17, if you see, it is given that the two convex lens of equal focal length f are placed in contact. So we are given that there are two convex lenses of focal length f and they are in contact. The focal length of the combination is. So आपको उसका effective focal length find करना है. So there are two convex lenses given and both are having focal length of f. They are placed in contact. So this is first convex lens having focal length f, second convex lens of focal length f. So now you have to find focal length of the combination. Don't you think so? It's a very simple question. 1 upon f equivalent will be 1 upon f1 plus 1 upon f2. There is no separation between them, so d wala term nahi aayega. So you get 1 upon f plus 1 upon f, that is 2 divided by f. So I get f equivalent to be equal to f divided by 2. That should be one of the option given. So this was 17th question. Now these questions are really very easy, and as we proceed further you will come across some challenging questions also. Now question number 18, two thin lenses of focal length plus 60 and minus 20 are placed in contact. The focal length of the combination. So अभी ये वाले क्वेश्चन में f के टर्म में था, अगले क्वेश्चन में कह रहे कि फोकल लेंथ एक का 60 है और एक का फोकल लेंथ -20 दे रखा है एंड दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. सो अगेन सेपरेशन नहीं दिया हुआ है, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन -20. समझा ये? यू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट विद साइन. ओके, सो हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20. आसान है क्वेश्चन. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, तो 1/60 माइनस 3/60, तो यू गेट -2/60. सो आपको मिलेगा 60/2, दैट इज -30. सो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आने वाली है वो होगी -30. दैट शुड बी वन ऑफ द ऑप्शन गिवन. फिर थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, या 19th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है देयर आर टू लेंसेज हैविंग पावर +6 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर. सो इस बार क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं है, इस बार क्वेश्चन में पावर दे रखा है. एक लेंस का पावर है +6 डायोप्टर और एक लेंस का पावर है -4 डायोप्टर्स एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंबाइंड लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. पावर दे रखा है और आपको बोला है कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगी उसका नेचर क्या होगा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी. एक्सक्यूज मी. सो अब आप जानते हो कि पॉजिटिव पावर यानी कन्वर्जिंग लेंस जो कि नॉर्मली कॉन्वेक्स होती है, और नेगेटिव पावर यानी कि डाइवर्जिंग लेंस जो कि नॉर्मली कॉन्केव होती है. सो अब पहले क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट इसका पावर फाइंड करेंगे. इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा P1 प्लस P2. सो आपको मिलेगा 6 प्लस -4, दैट गिव्स यू 2 डायोप्टर. अब ये पॉजिटिव पावर आया. सो पावर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स होगी. अब फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करोगे, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट है ना, पावर का रेसिप्रोकल का वैल्यू दे रखा है 20 डायोप्टर. सो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1/2 मीटर्स में, यानी यूल गेट 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन होगा 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस. देन क्वेश्चन नंबर 20 जो मैं ओरली बता रहा हूँ, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज द पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है उसका, और उसका आपको पावर पूछा है. अब वो बोले डाइवर्जिंग है. सो बच्चों डाइवर्जिंग अगर है, ये मैं चलो डिस्कस कर लेता हूँ. अगर ये डाइवर्जिंग है इसका मतलब क्या हुआ, पावर नेगेटिव आना चाहिए. सो व्हाट इज पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ
कंडीशन है कि फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है, सो हो जाएगा 1/40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, सो आपको मिलेगा 2.5, पर ये डाइवर्जिंग है, सो आंसर होगा -2.5 डायोप्टर्स, एंड दैट इज गिवन टू बी वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्सक्यूज मी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि 2 कॉन्वेक्स लेंसेज of power 4 diopter and 6 diopters are separated by 1/6 meter the power of the optical system। so इस बार सेपरेशन के साथ है, so उन्होंने 2 लेंसेज दी है, दोनों का पावर दे रखा है आपको और सेपरेशन भी दे रखा है। so फर्स्ट का पावर 4 डायोप्टर है, सेकेंड के लिए पावर 6 डायोप्टर है, और जो सेपरेशन है दैट इज गिवन एज 1/6 मीटर। सही है, ओके। द पावर ऑफ द सिस्टम इज, सो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट पावर जो होगा ऐसे सिचुएशन में वो होगा फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर माइनस डी इंटू P1 P2। चलिए इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, P1 इज 4, ये हो गया 6 माइनस 1/6 इंटू 4 इंटू 6, सो 6 एलिमिनेट 4 एलिमिनेट, आंसर आ रहा है 6। सो 6 डायोप्टर विल बी इक्विवेलेंट पावर। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, a lens of power +2 diopter is placed in contact with the lens of power -1 diopter, the combination will behave like। हमने ऑलरेडी ऐसे एक क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। 23rd वाला, when 2 thin lenses of same nature are put in contact, the focal length of the combination। this was the first question of today's session। अगर दो आइडेंटिकल लेंसेज को आप कॉन्टैक्ट में रखोगे, सो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f यानी कि 2/f, तो f इक्विवेलेंट हो जाएगा f/2। so overall focal length will decrease, so smaller than either of the focal length would be the more appropriate answer। 24 देखिए, इसमें कन्वर्जन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 thin lenses of focal length 20 cm and 25 cm are placed in contact। so 2 lenses है having focal length 20 and 25 cm and they are placed in contact, the effective power of the combination। so आपको बच्चों उन्होंने फोकल लेंथ दे रखी है, f1 का वैल्यू दे रखा है 20 cm और f2 की वैल्यू दे रखी है 25 cm and they are placed in contact। so पहले तो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए। अच्छा, आपको इन्होंने क्या पूछा, इफेक्टिव पावर पूछा है, सो इससे बेहतर होगा कि आप P1 फाइंड कर लीजिए। सो P1 को आप क्या लिखोगे, 1/f1, कंडीशन ये मीटर में होना चाहिए, सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5 डायोप्टर आएगा। वैसे P2 की वैल्यू क्या होगी, 1/f2 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4 डायोप्टर, दोनों ही पावर पॉजिटिव है, सो इक्विवेलेंट जो पावर होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 यानी कि 5 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर, दैट गिव्स यू 9। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन। इज दैट क्लियर? इसी का एक्सटेंशन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 27 भी वैसा ही है, 28 भी ऐसा ही है। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दे रखे वो है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 29। 29th वाला जो क्वेश्चन है, 29th वाला जो क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, 29th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है if I1 and I2 be the sizes of the images respectively for the 2 position of the lens in displacement method। डिस्प्लेसमेंट मेथड के 2 पोजीशन में I1 और I2 इमेज की साइज है। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसको पता है उसको आंसर ओरली आएगा कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी √I1 into I2। इट इज सो सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a convex lens forms a real image on screen placed at a distance of 60 cm from the object। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो किसी स्क्रीन पर जो कि ऑब्जेक्ट से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस d था। व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्क्रीन बाय 20 सेंटीमीटर।
अब इस लेंस को मैंने स्क्रीन की तरफ शिफ्ट कर दिया 20 सेंटीमीटर से, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस 20 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, अनदर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी, फोकल लेंथ। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं किया होगा या सुना ही नहीं होगा, उनके लिए क्वेश्चन गया, दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। पर अगर जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तो खुश किए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, फोकल लेंथ इज गिवन बाय डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। सो डी स्क्वायर यानी कि इसको तो a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हो, तो हो जाएगा कितना 80 इंटू 40। आई होप ये समझा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे 4 इंटू कैपिटल डी 60। सो दिस गिव्स यू 10 एंड दिस गिव्स यू कितना हो जाएगा, ये 80/6 यानी कि 40/3। सो फोकल लेंथ होगा 40/3। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन। नाउ इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंसेज। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस का देखो एक क्वेश्चन है 31 वाला, 32 वाला ये आसान है, आप मैनेज कर सकते हो। 31 वाला देखिए, एक्सक्यूज मी, 31 वाला देखिए। A plano-convex lens, when silvered on the plane side, behaves like a concave mirror of focal length 60. Plano-convex lens, when silvered on the plane side. Plano-convex lens, when the silvered on the plane side. तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ मेरे बच्चों अगर आपको याद है तो r/2 म्यू माइनस 1 है। ये बेनिफिट है उसको माइनस r/2 म्यू माइनस 1। फिर तो इसका फोकल लेंथ है 60। डेफिनेटली कॉन्केव मिरर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे आप। However, when silvered on the convex side, behaves like a concave mirror, focal length 20. Okay, when it is silvered on the convex side, तो उसका equivalent focal length कितना होता है बच्चों, माइनस r/2 में। ठीक है, सो उन्होंने दो कंडीशन दिए बच्चों। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में ये दोनों एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, वैसे आपको जाना पड़ेगा। मैंने क्या कर रखा है, ये केसेस ही लर्न कर लिए। सो अब क्या करेंगे आप, इस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -60। पहले केस में उसकी फोकल लेंथ -60 बता रहे हैं और सेकेंड टाइम में -20 है। सर माइनस क्यों लिया, कॉन्केव मिरर बन रहा है वो। सो चलो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, -60 वुड बी -r/2 म्यू माइनस 1। तो क्या यहाँ से हमको r/2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से r/2 हो जाएगा 60 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ओ बच्चों यहाँ से r/2 की वैल्यू होगी 60 इंटू म्यू माइनस 1। अब अगर मैं ये सेकेंड की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ जहाँ पर f इक्विवेलेंट इज -20 इज इक्वल टू -r/2 और r/2 की वैल्यू 60 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू। सो ये एडजस्ट हो गया, ये 3 हो गया। सो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 3। सो नंबर्स को इंटरचेंज मतलब अननोन्स और नोन एक तरफ, आपको मिलेगा 2 म्यू इक्वल्स टू 3 और म्यू इक्वल्स टू 3/2। नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो, स्पीड इंक्रीज करने का तरीका। और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आप पिछले सेशन में जाइए, इनको कैसे डिराइव किया था आप देख लीजिए। अभी क्लियर, ये एक अच्छा क्वेश्चन हमको आज के सेशन में अब तक मिला। सो दिस वर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो भी बातें हमने कल करी थी उन पर। इस पर कुछ लेवल 2 में भी क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस करने चाहिए। आई विल जस्ट सर्च फॉर देम। अब लेवल 2 का 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4th। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा कम पेस पर रीड करूंगा, आप सुनेंगे और उनको डेटा को नोट कर सकते हैं आप। Okay, so it is given that a thin equiconvex lens has focal length of 10 centimeter. Equiconvex lens has focal length of 10 centimeter, refractive index 1.5. So एक equiconvex lens है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फिर one of the faces is now silvered and for an object placed at a distance u in front of it, image and the object coincides. Okay,
अब इसका एक सरफेस सिल्वर कर दिया गया और इससे यू डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और अब ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। आप सोचो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। सोचो बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब होती है? मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब होती है? वेरी गुड, व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो उसके लिए इसका एक इफेक्टिव कॉनकेव मिरर होगा। सो उस कॉनकेव मिरर का रेडियस आपको पता करना है। क्या आपको लेंस का रेडियस पता करना है? नहीं। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। आपको जो इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर बनेगा, चल मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अच्छा, जो अच्छा क्या ये मानते हो आप, ये ऐसा करने पर एक इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर बना? हाँ सर, उस इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर का एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा। उसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो इक्विवेलेंट रेडियस बाय 2 होगा, बिकॉज मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है। सो अगर आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी, उससे इक्विवेलेंट रेडियस आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेडियस से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस के डिस्टेंस पर ही है। इन शॉर्ट बच्चों, आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। वापस से, ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कब होगी? जब एक मिरर के सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्या लेंस ओरिजिनली एक मिरर है? नहीं, इसको हमने मिरर बनाया है। तो जो इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर है, उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, उससे इक्विवेलेंट रेडियस आएगा, और वो इक्विवेलेंट रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अरे पोल से सेंटर का डिस्टेंस इज रेडियस। सो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेडियस, उसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ थी -r/2 2 μ - 1। ये आर क्या था? फोकल लेंथ ऑफ सॉरी माफ कीजिए, इट इज रेडियस ऑफ लेंस या रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस। हमको आर इक्विवेलेंट पे इंटरेस्ट है। सो एक काम करते हैं, क्या सर, टू कैलकुलेट एफ इक्विवेलेंट मुझे आर नहीं पता है, इसीलिए बच्चों फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ ऑफ द EQ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन बाय μ - 1 इन द ब्रैकेट 2/r। ओ बच्चों याद है? सो अब मुझे बताइए यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से r/2 की वैल्यू हो जाएगी, r/2 की वैल्यू f इंटू μ - 1। सो ये मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा f इक्विवेलेंट क्या आएगा? चलो हेल्प करो। f इक्विवेलेंट क्या आएगा? -r/2 की जगह पे f अपॉन μ - 1 अपॉन 2 μ - 1। अब देखो, क्या आपको f पता है? यस सर। म्यू पता है? यस सर। चलो बताइए। सो क्या होगा ये? माइनस ऑफ f, व्हाट इज फोकल लेंथ? 10। पहले ये कॉन्वेक्स लेंस थी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है unless it is specified as divergent. Okay, in the bracket mu is 1.5 minus 1 upon 2 into 1.5 minus 1. So 1.5 minus 1 is 0.5. 0.5 into 10 gives you 5. So हो जाएगा -5. 2 into 1.5 3 minus 1 2, ये ऐसा आएगा। F equivalent is minus of R equivalent by 2. So 2 eliminate हुआ, यानी R equivalent कितना है बच्चों? 5। यानी सेंटर कहां पर होगा? इक्विवेलेंट सेंटर 5 पर होगा, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल, फिर से एक बार, एक्सक्यूज मी। देखिए क्या कह रहे हो, हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। उसके एक सरफेस को सिल्वर किया गया और उससे सामने यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरीके से पता करना है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट पर ही कोइंसाइड करेगी। अब आपको ये पता है ऐसे करने पर जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इफेक्टिव कॉनकेव मिरर बन जाता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा कॉनकेव मिरर के लिए जहां पर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड होगी। अगर आपको मिरर की थियोरी याद है, सो मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब होते हैं? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है
वो इफेक्टिव कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। अब मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस का डिस्टेंस, तो इन शॉर्ट आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट विल कोइंसाइड। अच्छा, किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर? तो जो इफेक्टिव कॉन्केव मिरर बनता है उसके लिए आपको चाहिए इफेक्टिव फोकल लेंथ, उसके लिए आपको चाहिए इक्विवेलेंट आर। अब मुझे पता है ऐसे करने पर एफ इक्विवेलेंट इज माइनस ऑफ आर अपॉन 2 2 म्यू माइनस 1, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस, और लेंस मेकर्स इक्वेशन से 1 अपॉन एफ इज म्यू माइनस 1 इन द ब्रैकेट 2 बाय आर। सो यहां से r by 2 मैंने फाइंड कर लिया, सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप, माफ कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is in contact with a concave lens. Focal length of the combination is numerically equal to that of the concave lens. Okay. So एक convex lens जिसका फोकल लेंथ आपको पता है और एक कॉन्केव लेंस दोनों कांटेक्ट में है, और जो इफेक्टिव लेंस बन रही है उसकी फोकल लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस। सो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ मुझे पता नहीं है। नाउ दीज टू आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं, दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो इक्विवेलेंट लेंस बना है, इसका जो एफ इक्विवेलेंट है वो न्यूमेरिकली एफ के बराबर ही है, न्यूमेरिकली मतलब वैल्यू वाइज। तो आपको एफ की वैल्यू पता करनी है। चलो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। सोचो जरा कैसे करोगे। दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे? 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है, सो हाउ विल यू गो अबाउट इट? सो मैं लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 यानी 1 अपॉन 10। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव, सो यहाँ पर आकर पॉजिटिव, यानी कि 2 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई 10, तो एफ हो जाएगा 20। सो उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होगी 20। इज दैट ओके? क्या जो बोला वो समझ में आया? हाँ या ना? सो 20 is one of the option given. स्क्रीन को पॉज कीजिए प्लीज, इसको नोट कीजिए। अभी मैं और इसमें क्वेश्चन ऐसा ढूंढ रहा हूं जिससे हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस भी देख सके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, राइट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ले चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें लिखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, और जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का सिस्टम है उन पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस किया गया है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस किया गया है। See what is given. A convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। सो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड दे आर कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अपार्ट। सो वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस एंड वी ऑल्सो हैव अ कॉन्केव लेंस एंड दीज टू लेंसेज आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। A parallel beam of light incident on the convex lens emerges from the concave lens as a parallel beam of light. इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, दूसरे मेथड से करना है। सो अब क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस उसको फोकस पर लाएगा, कहां पर? 20 सेंटीमीटर पर। 20 सेंटीमीटर पर लाएगा, ठीक है। मतलब अगर कॉन्केव लेंस नहीं होती तो वो फोकस पे 20 पर आ जाता है यहाँ पर, बट सिंस यहाँ पर बीच में कॉन्केव लेंस आई है
डू यू एग्री? ये लाइट को डाइवर्ज करेगा ऐसे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा. सो पैरेलल बीम आया और पैरेलल बीम गया. इज दैट क्लियर? अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि ये सेपरेशन 5 है, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 है. ध्यान दो, ये डिस्टेंस 20 है. बोल भाई, ये 20 है, ये 5 है, तो दिस हैज टू बी 15. यानी बच्चों ये जो कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनती थी वो कॉन्केव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एट 15 सेंटीमीटर. अब जब रेस ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो रेस पैरेलल जाएगी. पैरेलल, कॉन्केव लेंस को भूल जा, पैरेलल रेस फोकस पर आनी चाहिए थी, पर कॉन्केव लेंस को ऐसा अरेंज किया है 5 सेंटीमीटर कर पैरेलल रेस आई और पैरेलली चली गई. तो आपसे बोला गया कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी. आप ऐसा सोचो ना बच्चों, इसका जो इमेज था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बना. जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 है, ये सेपरेशन 5 है, सो दिस हैज टू बी 15. यानी कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के लिए 15 पॉजिटिव पर है और इमेज कहां बनानी है? इंफिनिटी पर बनानी है. बोलो भाई. तो आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, तो इसकी फोकल लेंथ आ रही है 15 और कॉन्केव है तो वो -15 होना ही चाहिए. क्या जो मैंने बोला वो समझा? अब इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से कैसे सॉल्व करोगे? रेस पैरेलल आई, रेस पैरेलल गई, यानी इन दोनों के सिस्टम का इफेक्टिव पावर क्या हुआ? पैरेलल रेज आई और पैरेलल रेज ही गई, यानी इस दोनों लेंसेज के सिस्टम का इफेक्टिव पावर तो जीरो हुआ. देयर इज नो बेंडिंग ओनली, लाइट पैरेलल है और लाइट पैरेलल जा रही है. देयर इज नो रिफ्रैक्शन ओवरऑल. ओके, इंडिविजुअल रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? इक्विवेलेंट पावर 0. इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? 0. ये दो लेंसेज है जिनका सेपरेशन d 5 सेंटीमीटर दे रखा है. हाँ, मैं उसी फॉर्मूले से करने वाला हूं. सो याद है आपको P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था, क्या था? इट वाज P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2. बच्चों याद करो. अब F अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका जो पावर है P1, क्या मैं बोल सकता हूँ 5 डायोप्टर्स होगा. इतना आना चाहिए बच्चों. कैसे? 1/20 सेंटीमीटर ऊपर 100, 100/20 गिव्स यू 5. अब इक्विवेलेंट पावर कितना लेना है आपको? 0. विल बी इक्वल टू P1 5, P2 मुझे पता नहीं है, माइनस D कितना है 5, P1 कितना है 5, P2 मुझे पता नहीं है. सो हमारे पास क्या बचा? सो अभी यहां पर एक अननोन है P2 जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो. सो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू okay. Now again this D is in 5 centimeter, so it is better rated as 5/100. Okay, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. So 25/100 gives you 1/4. So आपको मिलेगा 5 प्लस P2 माइनस P2/4, यानी कि -5 इज इक्वल टू क्या आया? 3P2/4. सो आपका P2 का वैल्यू क्या है? 1/P2 की वैल्यू क्या है बताओ? चलो 1/P2 की वैल्यू क्या है? -3/20. 1/P2, 1/P2 यानी क्या हुआ? F इक्विवेलेंट हुआ ना. 1/P इज फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ आ रही है -3/20. इसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 कर लो, तो -15 सेंटीमीटर आ गया. सर क्या क्या जादू है? 5 नीचे, P2 यहाँ पर. 1/P2 क्यों किया? बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ पावर इज गोइंग टू गिव यू फोकल लेंथ. सो 1/P2 इज F. -3/20 ये मीटर में आएगा, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो इंटू 100. सो आई गेट -15. तो ये ओरली मेरा 15 आया और ये लंबे मेथड से 15 आया. वॉट एवर सूट्स यू कैन फॉलो. दिस इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था लेवल 2 से. सो नाउ लेट मी गो थ्रू फ्यू मोर क्वेश्चंस. अगर है तो हम वो जरूर डिस्कस करेंगे. हाँ, दिस अगेन अ गुड क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, डू नॉट वरी स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच डिटेल एज पॉसिबल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन है ऐसा 13th वाला जिसमें लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ पॉइंट distant x from the focus of a convex lens
एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x डैश, व्हाट रिलेशन इज करेक्ट? सो ऐसे एक डायग्राम है जिसमें एक लेंस है कॉन्वेक्स, ये इसका फोकस और ये भी इसका फोकस है, सेकेंड फोकस एंड फर्स्ट फोकस। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये डिस्टेंस x दे रखा है बच्चों, इमेज यहां बन रही है यानी रियल इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस x डैश दे रखा है। अब जितने भी ऑप्शन है बच्चों वो x डैश और फोकल लेंथ के टर्म में है, x डैश और फोकल लेंथ के टर्म में, मतलब वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, क्या x प्लस एक्स डैश बाई 2 फोकल लेंथ होगा, या वो ऐसा कह रहे हैं कि f विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स डैश, या वो कह रहे हैं कि x प्लस एक्स डैश विल बी लेस देन 2f, या वो कह रहे हैं कि x प्लस एक्स डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f। ऐसे चार ऑप्शन हम बना लेते हैं, शायद कुछ कुछ आपको कनेक्ट हो। सोचो बच्चों, अगर क्लिक हो गया तो बहुत इजी, नहीं क्लिक हो तो किसी के अराउंड आप चक्कर मारते रहोगे। इट इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट मेथड बच्चों। क्या ये डिस्टेंस f है? हाँ सर। फोकस लेंथ, क्या ये भी फोकल लेंथ है? हाँ सर। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कल हमने पढ़ा था 4f होता है, यानी कि x प्लस एफ प्लस एफ प्लस एक्स डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f, यानी कि x प्लस एक्स डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f माइनस 2f, यानी कि x प्लस एक्स डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल करेंगे ना तो फिर वो 1 वाला भी राइट होता है। और अगर आपने बराबर से पढ़ा है, बताई हुई बातों को याद रखते हो, याद है इसका रिलेशन था f² इज x इंटू एक्स डैश, मैंने x1 x2 के टर्म में लिखा था। हाँ, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फोकस से दिया जाएगा तो फोकल लेंथ इज x इंटू एक्स डैश या x1 इंटू x2, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो सेकेंड वाला गलत है बिकॉज यहाँ पे f² नहीं है, फर्स्ट वाला स्पेशल केस में राइट है, इक्वालिटी है। एक्चुअल रिलेशन क्या है? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f। फॉलोड एवरीवन? समझ में आए? अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कभी कभी मैग्निफिकेशन भी पूछते हैं, जो कि इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अगर मैग्निफिकेशन पूछा तो इट विल बी f डिवाइडेड बाई u, यानी कि f डिवाइडेड बाई x आएगा। सर ये कैसे लाते हो या कैसे आए? एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? इट इज v बाई u। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इसको अपन f अपॉन क्या लिखते हैं? u प्लस एफ। सोचिएगा f अपॉन यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी? देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस u होता है, u बराबर। अब जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ये माइनस u आएगा, तो आपको बेसिकली f माइनस u चाहिए, f माइनस u गया ऊपर से। ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट। जब आप सम के लिए सॉल्व करोगे, अगर ये x दिया हुआ है तो साइन कन्वेंशन आएगा ना। सो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ? u की जो वैल्यू है वो क्या है? f प्लस एक्स है। बोल भाई, तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? या माइनस u की वैल्यू क्या होगी? f माइनस एक्स होगा साइन कन्वेंशन के बाद। तो क्या मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, इसको इधर, x विल बी इक्वल टू u प्लस एफ। तो u प्लस एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? x। सर अकेली बात करें ना, थैंक यू। ये डिस्टेंस कितना है? u। ये कितना है? x और ये f है। f प्लस एक्स इज u। साइन कन्वेंशन, ये नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बोलो भाई। हाँ, सो m will be equal to f divided by x. So these were questions based on whatever we had discussed in the last session. I'll just go through few more question, अगर होंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में फिर माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें बच्चों कटिंग ऑफ लेंसेज पे भी एक क्वेश्चन है, मैं कर लेता हूँ। चलो 16 और 17 एंड देन विल स्टॉप। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, देन वी विल स्टॉप। 16 क्वेश्चन कह रहा है, 16th क्वेश्चन कह रहा है
A equiconvex lens of glass of focal length 0.1 meter. So focal length 0.1 meter, equiconvex, or can we say 10 centimeter? It is cut along a plane perpendicular to the axis. तो इसको कट किया हमने, ये एक्सिस इसको परपेंडिकुलर कट किया. सो याद है ऐसे दो पार्ट्स बन जाएंगे, तो इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा. द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू न्यू पीसेस. अच्छा, इन दोनों की फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? ये तो 1:1 आएगा ना, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में कट किया. अच्छा, अगर एक पीस का ओरिजिनल से पूछा होता तो कट करने पर ये एफ डैश हुआ, याद है एफ डैश इज 2f आता है, या कट पार्ट की फोकल लेंथ पूछी होती तो 20 आंसर होता है. सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. 17. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट प्रिंसिपल एक्सिस. एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है. इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक, इसको अगर ब्लैक पेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? इमेज शिफ्ट होगी. आंसर है इमेज वहीं की वहीं बनेगी. इमेज विल नॉट शिफ्ट. क्यों सर? इसको ब्लैक पेंट भी अगर आप करोगे तो भी इमेज बनने के लिए जो रेज है वो यहां से जा सकती है ना. ये देख, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस थोड़े ना चेंज हुआ, नहीं उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फोकल लेंथ चेंज हुआ ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हुआ, तो इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इमेज का ब्राइटनेस चेंज होगा. पहले जो इमेज बन रहा था उसमें रेज अपर पोर्शन से भी आ रही थी, पर अब ऊपर वाले पोर्शन से लाइट नहीं आएगी. समझा? सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से लाइट आएगी. सो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लेस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पर इमेज वहीं की वहीं पे बनेगी, इमेज शिफ्ट होने वाली नहीं है. फॉलोड बच्चों? सो दीज वर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन silvering of lens, combination of lens, lenses in contact, cutting of lens, etc. etc.